Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 24th July 2021 and I am teaching you chapter number 4. Name of the chapter is Eating Right. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video, student. So in the previous video, student, I explained you water and roughage. Okay, so as I already in very detail I have explained both the topic. Today I just do the recapitulation, and if you want to see the detailed study on this topic, you can watch the previous video of your class 5th EVS. Okay, now as I told you, student, that water and roughage both are not a nutrients, but they are very essential part of our body. दोनों ही nutrients नहीं है, but they are very essential part of our body. So this whole topic we have already discussed in the previous video. Now open page number 32. There are some fill in the blanks even in the book. Let's discuss this, and after that I will discuss balanced diet with you. Fill in the blanks. First question: dash gives us energy. That gives us energy for our daily activities. Okay, so dash give us energy for our daily activities. So we are getting energy by eating different types of a food, because due to food all living things, as you know that, student, all living things, plants, animal, human beings, all need food to live. अगर फूड नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे बिना खाने के. So we all need food for life. And another important thing is that food give us energy to perform different activities in our day to day life. Due to food we are able to do different type of a work also. Is it clear? And due to food there is a growth in our body. हमारी बॉडी की ग्रोथ भी तो होती है. आप लोग कभी बहुत छोटे हो गए, आज क्लास 5 में हो गए, 6, 7, तो आप भी ये फील करते होगे कि आपके बॉडी ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी की. ठीक है, तो that is the reason food also help us to grow the body, and due to this food only, student, we are fit and healthy. और ये फूड ही है जिसकी वजह से हम लोग फिट भी हैं और हेल्दी भी हैं. ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस किया था 2 बच्चों के नाम से. ठीक है, कि एक बीमार रहता था और एक बहुत फिट रहता था. एक हरदम खेलता था तो टायर्ड हो जाता था, वीक फील करता था, और एक बिल्कुल ठीक था. तो रीज़न क्या था? एक बच्चा बैलेंस डाइट लेता था इसलिए वो फिट और हेल्दी था, और एक बच्चे प्रॉपर डाइट नहीं लेता था, दैट इज द रीज़न वो अनहेल्दी रहता था. ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? फूड. फूड गिव अस एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? राइस wheat
rice, wheat, and sugar. And sugar, rice, wheat, and sugar are rich in, ठीक है। तो राइस, व्हीट, शुगर, बेटा जितने भी सीरियल्स होते हैं ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। जिस तरह डिफरेंट व्हीकल्स हमारे सराउंडिंग्स में रन करते हैं, ड्यू टू दे रन ड्यू टू बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ ए पेट्रोल, फ्यूल उनका क्या है, पेट्रोल है, डीजल है या सीएनजी है। इन द सेम मैनर our body is also a machine, but it is a wonderful living machine. We also need energy, so this energy we are getting from the food, that first fill in the blanks में already discuss किया है। so rice, wheat and sugar are rich in, जब मैंने आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के ग्रुप बताए थे तो उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि these nutrients are found in which types of the food. so rice, wheat, these are the सीरियल्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट और शुगर, सो दीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैट हेल्प टू कीप अस, fats help, fat help to keep us देखो बेटा फैट जो है तुम्हारा, ठीक है, आपका जो फैट के बारे में जब मैंने आप लोगों को डिस्कस पढ़ाया होगा, फैट इससे भी ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन फैट में क्या है, ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी में स्टोर होने लगता है। जब बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है ना, तो देयर आर सम मैनी अदर इंटरनल ऑर्गन्स आल्सो इन द बॉडी, तो ये दूसरे इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। यू आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, आप अलग अलग डिजीजेस से सफ़र करने लगते हो। नहीं तो फैट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। एंड फैट हेल्प टू कीप अस वार्म, ठीक है, हमारी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है। सो नोट डाउन द आंसर। Next, fourth question. Okay, fruits and vegetables. Fruits and vegetables. Vegetables are a good source of dash and dash। सो न्यूट्रिएंट्स मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल what we are getting, vitamins and minerals are present in fruit and vegetables. So fruit and vegetable are rich source of vitamins and minerals, and when we are talking about the vitamins, student, they are known as a protective food. They protect our body from the different diseases, because everyone we have immune system which fight against the infection. When any type of a microorganism enter in our body,
So this immune system fight against this infection. Okay, so fruits and vegetables are good source of vitamins and minerals. Fifth question is dash helps to regulate our body temperature. So it is asking that the dash helps to maintain our body temperature. हमारा बॉडी कैसे कूल रहती है, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम किससे होता है? वाटर से। क्योंकि जब वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो लॉट ऑफ स्वेट कम आउट्स फ्रॉम आवर बॉडी, बहुत हमें पसीना होता है। तो इतना ज़्यादा जो स्वेट होता है इससे ये क्यों होता है? जिससे कि बॉडी की हीट बाहर आ जाए और अंदर बॉडी क्या रहे? कूल रहे, ठीक है। सो वाटर हेल्प अस टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज balanced diet. अब देखो, ठीक है, बैलेंस डाइट सबसे लास्ट में क्यों आया? क्योंकि बेटा सबसे पहले आपको ये नॉलेज हो गई कि ये न्यूट्रिएंट्स के कितने ग्रुप्स हैं एंड हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स, व्हाट रोल प्ले बाय दीज different 5 types of nutrient which are required by our body. And the most important thing is that our body do not produce these nutrients, we get these nutrients from the food which we eat, ठीक है। हमारी बॉडी बेटा इसे प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें ये मिलता है कहाँ से? फ्रॉम द फूड विच वी आर ईटिंग। सो अब ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट इज ए बैलेंस डाइट? सो स्टूडेंट, ए डाइट विच कंटेन a right amount of nutrients, okay, a diet which contain a right amount of nutrient along with the water and roughage, that is known as a balanced diet. And one more point is given here, that is according to age and lifestyle is called a balanced diet, ठीक है। जब आप अपने, आज आप छोटे हो, कल आप एडल्ट हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो आपकी डाइट भी बढ़ जाएगी। आप कभी बहुत छोटे रहे होगे तो हो सकता है आप एक चपाती खाते हो, आज आप क्लास 5 में हो गए हो सकता है आप 5-6 खा लेते हो, उससे ज़्यादा भी कुछ बच्चे खा लेते हैं, है ना। तो बैलेंस डाइट क्या है? फूड डाइट से a diet which contain a right amount of a nutrient, okay, along with water and roughage, क्योंकि water roughage nutrient नहीं है, लेकिन बिना वाटर और रफेज के दे आर वेरी इंसिस्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। बिना वाटर के कोई भी हमारे बॉडी का कोई भी फंक्शन स्मूथली चल सकता है? नहीं चल सकता है। तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव्स करना, एब्जॉर्प्शन का काम, पूरे न्यूट्रिएंट्स को सारी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है। जो तुम्हारी बॉडी सेल से बनी है उसमें भी बहुत सा वाटर है,
सो दैट इज द रीजन वाटर बहुत इसेंशियल है। ये तुम्हारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी लेके जा रहा है। आप कंफ्यूज मत हो जाना बेटा कि सर ने तो पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मिक्स होके जाते हैं, तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में है और 70 मोर देन 70% जो ब्लड का कलर रेड है, लेकिन वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो उसका 70%, 70 से ज़्यादा परसेंट पार्ट क्या है, वाटर ही है। इसलिए मैंने बोला। और जैसे विटामिन जब पढ़ाए थे आपको, तो कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एब्जॉर्ब का भी काम करता है वाटर। तो दैट इज द रीजन वाटर और रफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स विच आर गिवन। फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, बैलेंस डाइट हो गया कि डाइट which contain a diet which contains a diet which contains a right amount of nutrients along with water and roughage। ठीक है। So a diet which contains right amount of nutrient along with water and roughage, that is known as a balanced diet। And meal, and next thing that is also given in a meal according to age and lifestyle, इसका डिपेंड लाइफस्टाइल है। जैसे बच्चा जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, आप लोग के भी पापा लोग आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो आप लोग, ठीक है। लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, स्पोर्ट्स पर्सन भी देखो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज करते हैं। और जब हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ये सब करते हैं, तो हम लोग इस हिसाब से हमारी डाइट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें भी तो आपकी एनर्जी लगती है, तो आपको उसके लिए आपकी डाइट भी तो ज़्यादा होगी। बहुत लोग जो जिम करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डाइट आल्सो, तो ये सब हो गया तुम्हारा अकॉर्डिंग टू एज एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, जो लोग लेबर्स का काम करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं, तो उनको अपनी डाइट में हाई रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट उनको चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। वो सब ताकत का काम कर रहे हैं, अपने शरीर से अपने हैंड्स को यूज़ कर रहे हैं। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को यूज़ करके वो वर्क कर रहे हैं, तो वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट चाहिए। और बच्चों को भी मैंने बताया था, चिल्ड्रन को भी कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज आप लोग बहुत एनर्जेटिक हो। आप लोग को 2 घंटे बोल दिया खेलने के लिए, आप लोग लगातार खेल सकते हो। अगर मुझे बोलोगे मैं नहीं खेल सकता, ठीक है। सो स्मॉल चिल्ड्रन और जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट चाहिए, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है कार्बोहाइड्रेट्स। बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको हमने एनर्जी गिविंग फूड भी हम बोलते हैं। ये हमको सीरियल्स में मिलता है, अनाज में मिलता है, शुगर में मिलता है। सो ये क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। जो डे टू डे लाइफ में जितना भी बेटा हम वर्कआउट करते हैं, जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके लिए जो एनर्जी हमें मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। और फैट भी हमारा क्या है, एनर्जी गिविंग फूड ही है, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है, दे बोथ गिव एनर्जी। लेकिन फैट के संग थोड़ा यही है कि फैट बहुत ज़्यादा कर लोगे तो ये स्टोर होने लगता है, बाकी न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं स्टोर होते, ये स्टोर होने लगता है। जब ये स्टोर हो जाएगा तो दूसरे इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करेगा एंड यू सफर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या है, ये एनर्जी गिविंग फूड है,
ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया प्रोटीन। देखो प्रोटीन एनर्जी नहीं देता है, ठीक है, बट many things are formed due to the protein। ये इससे आपके बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपके डैमेज सेल को रिपेयर करता है, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल्स करता है, आपकी स्किन की फॉर्मेशन हो रही है, आपके जो बाल हैं ये हेयर्स इसकी फॉर्मेशन हो रही है, आपके जो नेल्स हैं ये भी इसी से बने हुए हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को ये शेप देता है, इससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है, आपके बॉडी की क्या ग्रोथ होती है। प्रोटीन रिच डाइट से आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स होगा, बोन्स है, ठीक है, और बोन स्ट्रांग कैसे होंगी, वो होंगी मिनरल जो कि कैल्शियम का, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की बहुत सी यूजेस मैंने आप लोग को बताई थी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स है, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स है, कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन आपकी होती हैं, ठीक है, स्किन है आपकी, आप इंजर्ड हो जाते हो, ठीक है, आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू डेज आप ऑब्जर्व करते हो कि वहाँ फिर पे स्किन आ गई, तो ये क्या है, प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम, कोई बहुत ज़्यादा सिक है, बीमार है, तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा देते हैं, जिससे कि उसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट देते हैं जिससे कि उसकी रिकवरी जल्दी, वो जल्दी से हेल्दी हो जाए। बच्चों को स्पेशली प्रोटीन्स देना चाहिए क्योंकि वो क्या है, उनकी ग्रोथ हो रही है, अभी वो बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रही है उनकी बॉडी की, तो उनके डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए छोटे बच्चों में, ठीक है। और स्पेशली बहुत से लोग ऐसे हैं भाई जो नॉन वेज नहीं खाते, तो वो पल्सेस खा सकते हैं, सोयाबीन्स खा सकते हैं, ठीक है, और एग भी नहीं खाते, यहाँ तो एग नहीं खा रहे हैं तो वो मिल्क लें, वो अपने बच्चों को मिल्क दे सकते हैं 2 और 3 टाइम्स इन ए डे, क्योंकि मिल्क को हमने क्या बोला है, कंप्लीट फूड, बिकॉज ऑल द न्यूट्रेंट अलॉन्ग वाटर, सारे न्यूट्रेंट तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स along with water, all the things are present in the milk, so they can take milk, okay। so थर्ड वाला ये था, सेकंड पॉइंट प्रोटीन पे था। नेक्स्ट फिर हम लोग ने डिस्कस किया था विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था बेटा विटामिन्स पे और मिनरल्स पे। सो व्हाट दे डू, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को जब विटामिन और मिनरल बताया था तो मैंने ये बोला था ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल क्वांटिटी, तो इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला गया था, ठीक है। और दे आर नोन एज अ प्रोटेक्टिव फूड। ये कैसे फूड है बेटा, ये प्रोटेक्टिव फूड है, हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से सेव करने का काम करते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल जैसे कैल्शियम है, आपकी बोन्स और आपके टीथ इसी की वजह से इतने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इन द सेम मैनर आयरन जो मिनरल है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जिससे होता है, ग्रीन लीव्स में मिलेगा आपको, सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मिनरल्स जो हैं, ठीक है, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडीज और दे मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके बोन्स इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। आपके बोन्स इतने हार्ड कैसे होते हैं, आपके बोन्स इतने हार्ड हैं, आपके टीथ इतने हार्ड होते हैं, जल्दी नहीं टूटते, तो ये मिनरल्स क्या है, कैल्शियम है, तो ये भी आपकी बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था वाटर एंड रफेज, फोर्थ वन, वाटर एंड रफेज। वाटर एंड रफेज जस्ट अभी रिकैप्चुलेशन में भी आप लोगों को थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था कि वाटर और रफेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर और रफेज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ठीक है, बिकॉज वाटर, due to water help in digestion, observation, circulation of a nutrients
it maintains the balance of your body temperature. It is also present in the cell, and our body is made of very small parts, that is known as cell. So and even it remove toxins. ठीक है, जो हमारे चीज़ें हमारी बॉडी को वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करते हैं ना किडनी से, और यूरिन के फॉर्म में जो टॉक्सिन्स होते हैं विच आर ऑफ नो यूज फॉर आवर बॉडी, वो बॉडी से क्या करता है, आउट कर देता है. इज इट क्लियर? और रफेज है, रफेज क्या है, रफेज इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज नॉट डाइजेस्टेड बाई अस. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में फाइबर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशे. आपने कभी मम्मी लोग को किचन में काम करते देखा होगा, या तो आप देखोगे सब्जियों में और फ्रूट्स में बहुत रेशे होते हैं. अब आप लोग सब्जी, आई होप कि आप लोग नहीं काटते होगे, तो बनाना तो सब खाते होगे, ठीक है. उसके आउटर कवरिंग निकालने के बाद कभी उसको हाथ से टच करना, देखो कितने ज़्यादा फाइबर होते हैं. मैंगो खाते हो आप लोग, मैंगो को देखो, ठीक है. तो दैट इज़ द रीज़न, जो ये रेशे होते हैं, ये क्या है, हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो ये तुम्हारी स्टमक को क्लीन करने का वर्क करते हैं. जो फूड विच इज़ ऑफ नो यूज, दैट फूड गोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द फेसेस. तो हाउ दिस स्मूथली दिस फेसेस, हाउ दिस waste food smoothly move out from our body in the form of a feces, that is possible only due to the roughage, and this roughage is present in the fruits and vegetables. अब देखो डिफिशियंसी डिसीजेस. Now the new topic which I explained you, देखो पहले मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ा दिया, ठीक है. सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर दिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, वाई दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, सबके फंक्शन बता दिए. एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू इन विच टाइप ऑफ ए फूड you will get this nutrients, because student, if you eat same type of food daily, then you will never be healthy person, because these nutrients, that is carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals, we are getting these nutrients by eating different types of a food. एक ही फूड में नहीं मिलेंगे. हाँ, वो बात अलग है, मिल्क को कंप्लीट फूड बोला गया है, लेकिन मिल्क हम लोग देखो, बच्चों को बच्चे मिल्क ज़्यादा पीते हैं भाई, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है. मिल्क ऐसा नहीं है, बहुत लोग मिल्क नहीं, टी पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है. स्पोर्ट्स पर्सन से अगर आप बात करोगे, वो डेली मिल्क पीते होंगे, ठीक है. तो दैट इज़ द रीज़न. अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था. अब देखो सारे न्यूट्रिएंट्स की अब हमें नॉलेज हो गई, व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट दिस न्यूट्रिएंट्स. अब नेक्स्ट टॉपिक विच इज गिवन इन द बुक in this chapter, food we eat, it's also a very important topic, that is a deficiency diseases. अब देखो बेटा, हमें समझ में आ गया ये न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ना, वो लड़की क्यों बीमार रहती थी, बिकॉज शी डोंट टेक अ बैलेंस डाइट. तो जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, अगर हमारी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं, देन वी सफ़र विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज, जिसको हमने डेफिशिएंसी डिजीजेज बोला, ठीक है. ऐसी डिजीजेज जो हमारी बॉडी में
न्यूट्रंस की कमी से हो रही है, ठीक है, दैट डिजीजेस आर नोन एज deficiency disease. Okay, I will continue this topic in the next video. Thank you.